الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بات آئی تھی کہ ہمارے لیے جس طریقے سے ذاتی اعمال کی حفاظت ضروری ہے، ہمارے لیے جس طریقے سے خود کے عقیدے کی ضرورت کو بچانی ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک قانون ہے جو ہمارے درمیان عائلی قانون کہلاتا ہے، جو مسلم پرسنل لا کہلاتا ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کی حفاظت اسی وقت تک ممکن ہے جب تک کہ ہم اپنے شریعت کے اوپر مکمل طور پر پابندی کرتے ہیں، اپنی شریعت کو مکمل طور پر اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے ہیں، اپنے شریعت کو ہم محبوب بنا کر اسے سینے سے لگاتے ہیں، تو پھر یہ چیزیں ہمارے گرفت میں ہوتی ہے، ورنہ کوئی دشوار نہیں، وہ دن دور نہیں کہ شاید ہم اس چیز پر پابندی نہ کریں تو ہماری زندگی سے یہ چیز بھی چھین لی جائے. جیسا کہ پچھلے جمعہ کو ہم نے ایک مثال دیا تھا کہ اگر آپ ایسے راستے پر چلتے ہیں جو گوگل میپ کے اندر درج نہیں ہے، جس کا وہاں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، لیکن آپ لگاتار چلتے جاتے ہیں تو وہ راستہ برقرار رہتا ہے. لیکن اگر اس راستے پر آپ چلنا چھوڑ دیتے ہیں تو راستہ گورنمنٹ کے حساب سے بھی اور آپ کے محلے کے اعتبار سے بھی وہ راستہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس راستے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. چاہے تو کوئی لوگ وہاں پر قابض ہو جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، یا پھر گورنمنٹ اس کو اپنے انڈر میں لے کر کے وہاں پر کچھ اپنی تعمیراتی کام کرتی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے جس طریقے سے اور بھی چیزیں ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے لیے مسلم پرسنل لا کی بھی حفاظت ضروری ہے کہ ہم کو جس دیش کے اندر کہ جس ہندوستان کے اندر ہمیں کھلی طور پر یہ اجازت ملی ہے کہ آپ اپنے مذہبی قوانین کے اوپر، مذہبی رول کے اوپر آپ مکمل طور پر پابندی کر سکتے ہیں، آپ کو اس کے اوپر نہیں چھیڑا جائے گا، آپ کو اس کے اوپر کسی طرح کی روک ٹوک نہیں کی جائے گی. جب یہاں کی ڈیموکریسی، یہاں کی جمہوریت نے ہمیں اس چیز کو کی اجازت دے دی تھی، تو پھر ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لیتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سیریس لے کر کے نہیں چلتے ہیں. ہوا تو ہوا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں. ہم مستقل اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں جس بنیاد پر ہمیں طاغوتی طاقت یا وقت کے ظالم ہمیں یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے ہمارے اعمال سے، ہمارے ضروری مسائل سے ہمیں روکتے ہیں اور ہمیں پریشان کرتے ہیں. جن میں سے پچھلے جمعہ ایک بات یہ آئی تھی کہ ہمارا ایک سماجی مسئلہ ہے، جس میں سے یہ ہے کہ ہمیں اگر شادی کے بعد اولاً تو ہمیں نباہ کرنا ہے بہترین طریقے سے، بیوی کو خوش رکھنا ہے، ایک بیوی ہے تو انہیں شوہر کو خوش رکھنا ہے اور آپسی خاندانی نظام کو بہتر سے بہترین بنانا ہے. لیکن اگر کوئی ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے کہ دونوں میں انبن ہو جاتی ہے، دونوں کی مینٹلٹی میچ نہیں کرتی ہے، دونوں کا مزاج نہیں ملتا ہے، دونوں کے رشتہ داروں میں آپس میں مزاج نہیں ملتا ہے،
हर आए दिन दोनों में झगड़े फसाद होते हैं, इनको उनसे बेहतर की तलाश होती है और उनको इनसे ज्यादा बेहतर की तलाश होती है। तो इस सिलसिले में कुरान ने और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद दिया कि इस सूरत में फिर जाकर के तुम अलग हो सकते हो। जिसका मतलब हमने बयान किया था कि अलग कोई शख्स होना ही चाहता है तो होने की शक्लें हैं कि सबसे अव्वलन उनको क्या कहते हैं कि समझाया जाए, या के बाद दिगरे उनको समझाया जाए, स्टेप बाय स्टेप जो तरीक़ाकार शरीयत ने बताया था उनको समझाया जाए। अगर उसमें भी नहीं मानती है या लड़का मानता है तो उस सूरत में क्या कहते हैं तलाक की नौबत आती है। तो तलाक का तरीका ये होगा, क्या कहते हैं कि उनको हालत तोहर के अंदर हालत पाकी के अंदर उन्हें तलाक दिया जाएगा। और तलाक वो तलाक दिया जाएगा जो 3 तलाक नहीं होगा, बल्कि उन्हें तलाक एहसन दिया जाएगा। तलाक सुन्नत जिसको कहते हैं, एक तलाक वैसे तलाक उनको दी जाएगी जिनको हम तलाक रजी भी कहते हैं। तो उसके बाद रुजू करने का उनको मुकम्मल हक होता है। तो उसके बाद जहां तक बात आई तो इसकी भी तफसील पिछले जुमा हमने बयान की थी। एक मसला था आपके सामने जो अभी जिसको गवर्नमेंट भी अपने अंडर में लेकर के इसके बारे में फैसले सुना रही है। वो मसला क्या है, क्या तलाक के बाद मुतल्लका औरत यानी जिनको तलाक दिया गया है, क्या तलाक के बाद उनके शौहर पर उनका नफका वाजिब होगा? क्या तलाक के बाद मुतल्लका औरत के शौहर पर उनके ऊपर नफका वाजिब होगा? तो इस सिलसिले में हमें बात करनी है। तो उलमाए कराम बयान फरमाते हैं तलाक के बाद जब तक उनकी इद्दत होगी, जब तक वो औरत इद्दत के दरमियान होगी, उस वक्त तक उसका नफका उनके शौहर पर वाजिब होगा। और अगर जब इद्दत खत्म हो जाती है तो उनका नफका उनके शौहर पर वाजिब नहीं होगा। एक मसला है जिसे हमें बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो चुका है कि अगर कोई औरत को तलाक होती है, उनका शौहर तलाक देता है, तो तलाक के बाद भी उनको नफका शौहर से लेकर के दिया जाएगा। शौहर को नफका अदा करना जरूरी होगा। गवर्नमेंट तो हमें ये ऐलान करती है, अदालती फैसले तो हमारे तरफ ये हैं। और अदालत ही नहीं बल्कि बहुत सारी तंजीमें जिन्हें खुद अपने मजहब का ठिकाना नहीं, जिनके रिलीजन के अंदर खुद उनके अकीदे का ठिकाना नहीं, न ही जिनका कोई माँ है न जिनका कोई बाप है, न ही उनमें लॉजिकल कोई भी बात है, उनका कोई ठिकाना नहीं। हमारे इस्लाम पर हर आए दिन वो सवाल उठाते रहते हैं, हमारे इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की बातें मशवरे राय देते रहते हैं, जो कि हमारे कुरान के अंदर हमारे मुस्लिम परसनल्लाह के अंदर साफ तौर पर मुदाखलत है। इसके अंदर इंटरफेयर है कि कुरान एक तरफ ये कह रहा है कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तलाक के बाद जब तक औरत इद्दत गुजारेगी तो उस वक्त तक उसके ऊपर नफका होगा और इद्दत के बाद कोई नफका नहीं होगा। वजह उसकी क्या है कि जब एक मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो इद्दत गुजर जाने के बाद वो औरत उसके लिए अजनबिया के दर्जे में आ जाती है, अजनबी औरत बन जाती है। जब वो अजनबी बन गई तो फिर एक अजनबी मर्द पर एक अजनबी औरत के ताल्लुक से नफका कैसे वाजिब हो सकता है? देखिए उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि नफका के वजूब के लिए बहुत सारी शर्तें हैं, जिनमें से कुछ शर्तें मैं आपके सामने बयान करता हूं कि नफका के वाजिब होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि मियां और बीवी के दरमियान निकाह सहीहा हुआ हो। दोनों के दरमियान एक ऐसा निकाह हुआ हो जो कि सही हो शरीयत के एतबार से। निकाह सहीहा कहते किसको है कि दोनों का जब जिस वक्त निकाह हो रहा हो कि दोनों के अंदर वो चीजें या वो शराइत पाई जा रही हो जो कि निकाह के अंदर होता है। मिसाल के तौर पर निकाह के वक्त 2 गवाहों का मौजूद होना जरूरी होता है। तो जिस वक्त मियां और बीवी का निकाह हो रहा था, लड़के लड़की का निकाह हो रहा था, उस वक्त 2 गवाह मौजूद थे, तो ये निकाह उनका सही माना जाएगा। और शर्त यह है कि दोनों मुतअक्किदैन का जो लोग निकाह करने वाले थे, दोनों की रजामंदी जरूरी थी। अगर कोई शख्स उनमें से राजी नहीं होगा, उसके पास 2 गवाह जाकर के निकाह पढ़वा देंगे तो वो निकाह काबिल कबूल नहीं होगा। शरीयत ऐसे निकाह को निकाह सहीहा करार नहीं देगी। और निकाह ये है कि उस वक्त दोनों के अंदर निकाह सहीहा जो हुआ हो वो निकाह फासिदा ना हुआ हो। निकाह फासिदा क्या होता है कि आजकल नौजवानों के अंदर
या इस बेगैरत जमाने में बेगैरत लोगों के अंदर या अय्याशियों के अंदर, या इस वक्त कह लें कि लोग जिस तरह से एक फिल्मी दुनिया को या एक कैरेक्टर वाले दुनिया को जिस तरीके से फॉलो करते हैं, वो चीजें यहाँ पर साबित ना हुई हो। वो चीजें किस तरीके से साबित होती है? शिबे निकाह उसको कहते हैं। मसलन एक लड़का लड़की इंगेज होता है आपस में, उसके बाद खुद से ही निकाह पढ़ लेता है कि भाई हमने तुमको तुम्हारे निकाह में दिया और तुमने हमको मेरे निकाह में दिया, गवाह वहां पर मौजूद नहीं है, तो क्या ये निकाह हो जाएगा? ये निकाह नहीं होगा, क्योंकि वहां पर गवाह मौजूद नहीं है। गवाह वहां पर मौजूद नहीं है, इस वक्त शरीयत ने कहा कि वहां पर निकाह सहीहा हुआ हो। दूसरी शक्ल यह है कि जब निकाह करने वाले एक दूसरे के निकाह में आए तो वहां पर कोई हुर्मत मुसाहरत साबित ना हुआ हो, दोनों के दरमियान कोई हुर्मत मुसाहरत या हुर्मत रज़ाअत ना हो। हुर्मत मुसाहरत किसको कहते हैं? शॉर्ट में मैं बताता हूँ कि हुर्मत मुसाहरत कहते हैं कि जिनसे अगर उनका निकाह होने वाला है वो, और जिनके साथ या तो फिर क्या कहते हैं कि उनका लिविंग रिलेशनशिप, जिसको कहते हैं अंग्रेजी जुबान में लिविंग रिलेशनशिप, लिविंग टुगेदर, एक साथ जो दो लोग वक्त गुजारते हैं और आपस में आज के नौजवान या जो लोग भी ज़िनाकारी के अंदर मुलविस होते हैं, तो उस वक्त तो क्या कहते हैं जिना में मुलविस था पिछले खानदान में कोई, तो उसके बाद से ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होने के बाद वो लोग अलग हो गए, उसके बाद उसी के माँ बाप से या ससुर से या किसी से उनका रिश्ता लगा जो कि उनके उसूल फुरू थे, जो कि उनके उसूल फुरू थे, तो वो रिश्ता भी इस्लाम ने नाजायज करार दिया कि उस रिश्ते के अंदर भी आप हाथ नहीं लगा सकते। क्यों? कुरान ने कहा वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन सहीक़न नसबन व सिहरा। कुरान ने इस तरीके का अल्फाज कहा कि हमने तुम्हारे लिए इन रिश्तों को पानी से बना करके मुक़द्दस और काबिल एहतराम बनाया है। अगर तुमने पास्ट में किसी को छेड़ा है, अगर तुमने माजी में किसी को छेड़ा है, तो अब ऐसा है कि इनके उसूल और फुरू तुम्हारे ऊपर हराम हो गए, या फिर ऐसा है कि तुमने छेड़ा नहीं था, निकाह सहिया के साथ ही उनके साथ जुड़े थे, निकाह के साथ ही जुड़े थे, लेकिन ऐसा हुआ किसी सिलसिले में तुम्हारा तलाक हो गया, तो उसके बाद जो उनकी साथ है या फिर उनकी साथ की जो औलाद है वो आपके लिए हराम हो गई। फिर जो इधर से लड़का है तो लड़की के ताल्लुक से जो साथ ये भी हराम हो गए, इनकी तरफ से औलाद होने वाले ये भी हराम हो गए। यानी जिस तरीके से निकाह सहिया के अंदर आने वाले लोग या हुर्मत मुसाहरत से साबित होने वाले लोग, जहां पर नक्का वाजिब नहीं होगा वहां पर नक्का को अदा नहीं किया जाएगा। दूसरा मौका उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि नक्का के वजूद के लिए जो शर्त है वो शर्त यह है कि लड़की बड़ी हो, लड़की बड़ी हो, जिस लड़की का लड़के के साथ निकाह हुआ हो वो बड़ी हो, इतनी छोटी ना हो कि वो अपने ऊपर कुदरत ना दे सकती हो। मसलन वो लड़की बालिगा नहीं थी, इतनी छोटी थी कि उनकी जुदाई या रुखसती नहीं हो पाई या वो कुदरत नहीं दे सकती थी, यानी इतनी उनके अंदर एबिलिटी और क्षमता नहीं थी इस बात की कि वो एक फिजिकल रिलेशनशिप में आ सकती। ऐसे भी बहुत सारे निकाह होते हैं जो कि जिनके अंदर एक एबिलिटी नहीं होती है फिजिकल रिलेशनशिप में आने के, लेकिन निकाह हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी नक्का शौहर के जिम्मे नहीं होगा। ऐसी सूरत के अंदर भी नक्का शौहर के जिम्मे नहीं होगा। शौहर के जिम्मे में नक्का के वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि लड़की बड़ी भी हो। एक और शर्त है कि लड़की का जब निकाह हो चुका हो तो निकाह होने के बाद रुखसती भी हो चुकी हो। जब रुखसती नहीं हुई हो जिस वक्त तक, तो उस वक्त तक उनका नक्का उनके बाप के ऊपर वाजिब है, बाप नहीं है तो उनके भाई के ऊपर वाजिब है, भाई नहीं है तो उनके भतीजे के ऊपर वाजिब है, बितरतीब इस तरीके से वाजिब है। लेकिन अगर रुखसती हो जाती है तो रुखसती होने के बाद ये जो नक्का वाजिब होता है, फिर उसके बाद वो शौहर के ऊपर वाजिब होता है। एक और हमारे उलमाए कराम बयान फरमाते हैं कि देखें कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से हमारे आईनी कानून के अंदर इस तरह से मुदाखलत की जा रही है, हर आए दिन क्या कहते हैं हमारे आपस के मसले के ऊपर वो अपना नजरिया रख करके उसे कानूनी दर्जा करार दे करके उससे फैसला मनवाते हैं, तो इससे कितना बड़ा नुकसान हमारा ये होने वाला है कि कल देखें कि हमारे तलाक के ऊपर क्या कहते हैं बंदिश लगा दी गई, कल हमारी अजानों के ऊपर बंदिश लगा दी गई, परसों हमारी नमाजों के ऊपर बंदिश लगा दी गई। न जाने कब कब ऐसे खतरात हमारे सामने यूं ही आते रहेंगे। और इस वक्त तक हमारे मुसलमान भाई जो गवर्नमेंट का सहारा लेते हैं हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को छोड़ करके, तो कुरान इस सिलसिले में कहता है कि ये तागूत का साथ ले रहे हैं, तागूत का साथ ले रहे हैं।
क्या फरमाते हैं उलमाए कराम, क्या फरमाता है हमारे इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला? कुरान कहता है अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत व क़द उमिरू अन यकफुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईदा। क्या तुम उन लोगों को नहीं देखते हो, क्या तुम उन लोगों को अपने समाज में अपनी नजरों के सामने मुशाहिदा नहीं करते हो कि जो लोग ये कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, हम इस किताब को भी मानते हैं जो कुरान की शक्ल में है, और उस किताब को भी मानते हैं जो इससे पहले आसमानी किताब तौरात और इंजील की शक्ल में था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान कहता है कि वो ऐसा बर्ताव करते हैं, ऐसा दिखावा करते हैं, लेकिन जब उन्हें कहा जाता है कि तुम फैसले उस मुताबिक करना जिस तरीके के मुताबिक अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है, जिस तरीके के मुताबिक तुम्हारे रसूल ने तुम्हें हुक्म दिया है, तो जब फैसले की बारी आती है तो ये तागूत का सहारा लेते हैं, ये शैतानी फितने का सहारा लेते हैं, ये जालिमों का सहारा लेते हैं, ये गवर्नमेंट का सहारा लेते हैं जो कुरान के खिलाफ है। तो कुरान कहता है कि ऐसे सिलसिले में आप तागूत का सहारा ना लें, ऐसे सिलसिले में आप शैतानी सहारा ना लें, ऐसे सिलसिले में आप गवर्नमेंट का सहारा ना लें। जहां पर आपकी शरीयत सरेआम लुट जाती हो, वहां पर आप गवर्नमेंट के कुछ पैसे, गवर्नमेंट की मदद से कुछ पैसे लेकर ही क्या कर लेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान कहता है कि ये बहुत ही गंदी सूरत है। क्यों? कि कुरान, ये शैतान ये चाहता है कि इन्हें राह रास्त से भटका दे, शैतान ये चाहता है कि इन्हें राह रास्त से भटका दे, जबकि कुरान ने सारे अहकामात इसके अंदर बयान फरमा दिए हैं कि अव्वलन तुम निबाह करो, अव्वलन तुम आपसी ताल्लुकात को मजबूत करो, अव्वलन तुम आपस में मोहब्बत और इश्क को बढ़ाओ। लेकिन कहीं पर ऐसी नौबत आ जाती है तो सबसे बड़ी खराबी उसकी यह है कि गवर्नमेंट के हिसाब से अगर क्या कहते हैं कि शौहर को मजबूर कर दिया जाएगा नाम नक्शा के लिए, तो उस वक्त शौहर अव्वलन तो क्या कहते हैं कि वो तलाक देगा ही नहीं। इसकी खराबी यह है, तलाक देगा ही नहीं, वो यही चाहेगा जब हमारे पैसे खर्च हो ही रहे हैं तो उस वक्त क्या कहते हैं कि एक जिंदगी जो खराब होगी किसी की, वो लड़की की जिंदगी खराब होगी। हर दिन वो चीखेगा चिल्लाएगा, हो सकता है तो वो उसे पीटेगा भी, हो सकता है वो उसे मारेगा भी। हर दिन की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में झिक होगी, उसका जहनी सुकून, एक मेंटलिटी पीस जो होता है वो खत्म हो जाएगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो एक जिंदा लाश बनकर के खड़ी होगी। कुरान ने कहा कि अगर तुम में से कोई ऐसा जिनकी जिंदगी में ऐसी नौबत आ जाती है जो लोग कहते हैं, तो उस वक्त ऐसा करो तुम लोग आपस में इत्तेहाद के साथ अलग हो जाओ, तलाक ले लो, तलाक ले लो। हो सकता है इनको जो जिस चीज का ये मुतलाशी था, जिस चीज को ये ढूंढ रहा था, इनको ये मिल जाए, और तुमको जिस चीज की दरकार थी तुम्हें वो चीज मिल जाए। कुरान इस सिलसिले में कहता है। लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला हो गया है और लोग इसी का सहारा लेंगे, तो उस वक्त शौहर तलाक देगा ही नहीं, क्योंकि इनके पैसे तो खर्च हो ही रहे हैं, पैसे खर्च हो रहे हैं, तलाक नहीं देगा। और अगर तलाक दे भी दिया, तलाक देने के बाद अगर इनकी तरफ से ये फैसला हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको नफका देना है, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब वो नफका देगा एक मुतल्लका औरत, एक मर्द जो कि अब अजनबी बन चुके थे, इस पैसा देने की वजह से वो आपस में फिर भी जुड़े रहेंगे, आपस में फिर भी उनकी बातें होंगी, आपस में फिर भी वो फिजिकल रिलेशनशिप में आएंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक अजनबी औरत जो कि उनके लिए अजनबी बन चुकी है, एक अजनबी औरत जिनका उनसे निकाह टूट चुका है, अब उनसे कोई राब्ता नहीं है, वो फिजिकल रिलेशनशिप में आएंगे, यानी कि वो जिना करेंगे। जब जिना करेंगे तो गोया कि जिना को प्रमोट करवा रही है हमारी गवर्नमेंट। तो जिना को प्रमोट करवाने वाली गवर्नमेंट के हाथ का हम किस तरह से फैसले से इस्तेमाल करें, फैसले को उनको माने। तो कुरान कहता है कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या कहते हैं कि उनका सहारा ना लें। हाँ, नफका अगर वाजिब होगा, नफका वाजिब होता है तो इद्दत के दरमियान जो वाजिब होता है वो इद्दत के दरमियान ही वाजिब होता है। अगर कोई ऐसी औरत है जिनको हैज आते हैं, जिनको पीरियड्स आते हैं, अगर उसने तलाक दिया है तो 3 पीरियड तक, 3 हैज तक शौहर क्या कहते हैं उनका नफका उठाएगा। लेकिन कोई ऐसी औरत है जो आहिस्ता है, जिनको हैज नहीं होता है, तो क्या कहते हैं 3 महीने तक शौहर उनका नफका उठाएगा। लेकिन कोई क्या कहते हैं कि ऐसी औरत है जो कि प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के अंदर है, हामिला है, ऐसी सिचुएशन में उनको तलाक पड़ी है, तो शौहर की जानिब से जब तक उनकी डिलीवरी नहीं हो जाती है, जब तक उनकी विलादत नहीं हो जाती है, तब तक उनके जिम्मे शौहर के ऊपर नफका रहेगा। लेकिन जब उनका इद्दत खत्म हो जाता है, तो इद्दत के खत्म हो जाने के बाद मेरे दोस्तों बुजुर्गों क्या कहते हैं कि उनके ऊपर से नफका हट जाएगा। एक ये है कि एक तो औरत खुद से भी मुतालबा करके नहीं ले सकती इद्दत के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तागूत की फरमा बरदारी लाजिम आती है।
एक शैतान के फर्मा बरदारी लाजिम आती है। दूसरी शक्ल यह है कि गवर्नमेंट भी इस चीज को एआनत समझ करके या हदिया समझ करके नहीं दे सकती, दिलवा सकती है। या तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी या शौहर की तरफ से दिलवाएगा। शौहर की तरफ से दिलवाएगा तो मसला क्या है कि हदिया कहते ही उसको है जिसके अंदर किसी तरह की कोई शर्त ना लगाई गए हो, वो उहदिया बिला शर्ती। हदीस के अंदर आता है, उसूल के अंदर हदिया कहते हैं उसको है कि जिसके अदा करने में किसी तरह की कोई शर्त ना हो। और आनत भी उसी को कहते हैं कि जिसके अंदर कोई शर्त ना लगाई गई हो। लेकिन यहाँ पर देखें कि गवर्नमेंट यहाँ पर शर्त लगाती है, एक क्या कहते हैं शौहर के ऊपर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ऐसे सिचुएशन में करे क्या औरत? ऐसे सिचुएशन में औरत का मामला यह है कि अगर शौहर उनका आनत के साथ और क्या कहते हैं खुद से मतलब इस बात को डील करके अपने से रजामंदी के साथ उनके बोले बगैर दे दे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहते हैं कि वो ले सकती है। वरना सरकार गवर्नमेंट की तरफ से उनको जबरदस्ती करके या फिर वो खुद से मांग करके जबरदस्ती करके वो इस चीज को हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इस चीज को हासिल करती है तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर मुदाखलत होता है, हमारे आईनी कानून के अंदर मुदाखलत होता है। आज वो हमारे नस्बा को टारगेट कर रहे हैं, कल होगा कि क्या कहते हैं हमारे अजानों पर पाबंदी लगेगी और यूपी के अंदर लग चुकी है। और क्या कहते हैं कल ऐसा होगा मस्जिदों में नमाज पढ़ने से हमें रोका जाएगा, परसों ऐसा होगा मदारिस बंद किए जाएंगे और मदारिस भी बंद किए जा रहे हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और ऐसा होगा माअज़ल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, ऐसा ना हो कि जब बच्चे की विलादत होती है उनकी उम्र होती है कि जिनको हम सुन्नत के तौर पर बच्चे के साथ करें, यानी जिसको खतना कहते हैं, शायद उन चीजों से भी हमें रुकवा दिया जाए। यानी ये कि हमारे दीनी मसाइल के सामने, दीनी जरूरतों के सामने वो इस तरह से खड़े हों गोया कि वो ही मामला यहाँ पर कर गुजरे जो कि खाने काबा के दरमियान था, जिस वक्त को डटे हुए थे, कह रहे थे हम ऐसा नहीं करने देंगे, वैसा नहीं करने देंगे। तो ऐसा दिन किस वजह से आता है? क्यों कि हमने अपनी शरीयत को छोड़ा। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और इंतजार न करें कि फलाने लोगों की बारी आई, अरे हम तो खा रहे ना, अरे हम तो जी रहे हैं ना, हम तो बीवी बाल बच्चा के साथ घूम रहे हैं ना, अरे हम तो ड्रीम 11 की टीम बना रहे हैं ना, हम तो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं ना, हम तो जुआ भी खेल रहे हैं ना, सब कुछ चल रहा है, जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ रहे हैं, हो जा रहा है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, याद रखें कल उनकी बारी थी, आज इनकी भी बारी आएगी। जब आज इनकी बारी है कल किसी और की भी बारी आएगी। इससे पहले कि हम सतर्क हो जाएं, इससे पहले हम होश बाख्ता हो जाएं, इससे पहले कि हम सोचने पर मजबूर हो जाएं कि हमारे शरीयत के साथ जो लोग खिलवाड़ करेंगे, हम क्या कहते हैं किसी भी सिचुएशन में उनकी बात को नहीं मानेंगे, बल्कि हमारा मसला, समाजी मसला, मुआशरती मसला, बीवी और मियाँ का मसला जो भी अटकेगा, हम इसे शरीयत के रोशनी में दारुल कज़ा जाएंगे, जहां पर मुफ्तियों लोग बैठते हैं, मुफ्ती लोग बैठते हैं, जहां पर फैसला सुनाते हैं, शरीयत की रोशनी में इसका हल निकालेंगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी कामयाब करेगा, हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी, शादीशुदा जिंदगी भी कामयाब करेगा, और इंशाअल्लाह हम आखिरत के अंदर क्या कहते हैं पकड़े भी नहीं जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।